ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फोकस स्पेशल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मातृ संबंधित मृत्यु दर की, यानी कि एमएमआर की। यूनिसेफ ने रिसर्च किया। रिसर्च में काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसमें ये कहा गया है कि भारत जो है और देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा यहाँ पर एमएमआर के रेट्स सबसे ज़्यादा हैं। गरीबी की मार झेल रहे उड़ीसा में महिलाओं की स्थिति बेहद ही दयनीय है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और गरीबी की मार झेल रहे उड़ीसा में मातृ संबंधित मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। ये बेहद ही चिंताजनक बात है। गौरतलब है कि इस मुद्दे से आम आदमी को जागरूक करने के लिए यूनिसेफ ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। पेश है इस फिल्म की कुछ झलकियां। Her family fears the expense of private care, but Triveni may not survive the long journey and added transport costs to get to a government facility. Leads to a high maternal mortality rate. In this part of India, Orissa state, up to 8 mothers die, giving birth every day. Back at the health facility, another young mother battles the common killers here. Reaching the unreached means forging firm ties. Cash transfers to mothers to deliver in institutions and be helped by a paid community health worker have added value to Indian mothers' lives. Invariably, even the mother is very lean and thin. Most of the one or two ladies are very anemic. They have undergone CS operation, but if you see the child, they are all healthy. It is because of the care that has been taken during the time of pregnancy, including this iron, folic acid supplementation, immunizations, regular weight, regular checking BP, everything, monitoring in a very good sense. After an agonizing birth, Triveni has conquered complications and costs, paid this time by donation. A healthy baby boy brings delight to all, and Triveni joins the ranks of the millions of heroes who battle against the odds to bring a new life into the world. This is Sarah Crow in Kariyar, Orissa State, India. और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमोद जी और श्रीलता मेनन जी। आप दोनों का फिर से स्वागत है। डॉक्टर अमोद जी, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? पिछले कुछ सालों से क्या कोई कमी दर्ज की है एमएमआर रेट्स में, अगर बात की जाए तो? निश्चित रूप से पहले से फ़र्क तो पड़ा है, पर क्योंकि हम लोग शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव बेहतर है ग्रामीण क्षेत्रों से। लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी जो सबसे गरीब जो वर्ग के महिलाएं हैं, स्लम्स में रहने वाली महिलाएं और जो होमलेस हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अभी भी जो होमलेस महिलाएं हैं वो अपना सड़क पे बच्चे देने पे मजबूर हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने चेकअप करते समय ही एरिया में कैंप लगते समय डॉक्टर जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर यूनिसेफ के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जॉर्ज काराबोट जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या कुछ उनका कहना है इस फिल्म को लेकर के। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप इस फिल्म से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? The message is that girls who are educated and healthy and who have nutrition diet to their childhood and teenage age, they are more likely to have healthy babies and go through pregnancy and childbirth safely, but only if the childbearing begins after 18 years old. जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपने इस फिल्म के लिए ही उड़ीसा को क्यों चुना है? In our investigations, especially related to maternal deaths at community level, we discovered that 67% of maternal deaths are amongst ST-SC, with 67% are belonging to BPL families, and 92% of them are not aware about health benefits associated with BPL. However, 53% were illiterate, and their illiteracy was a bit high in this regard. Poor access to SBS service is evident also in 64% of the cases. जी, और इस फिल्म में दिखाए गए जो एमएमआर रेट हैं, क्या वास्तव में भारत में लड़कियों की स्थिति से मेल खाते हैं ये रेट्स? Yes. Again,
girl child in India are in a very disadvantaged moment now. Education is still a big issue, and girls that are not having education, they are facing adolescence with huge problems, especially in terms of access to health services and education, health education. जी डॉक्टर साहब, जो आपसे जानेंगे क्या सुझाव देना चाहेंगे, न केवल इस राज्य के लिए बल्कि पूरे और राज्यों की भी अगर हम बात करें तो उसके लिए? Education is the most important thing. Increase awareness of the communities and decrease the delays. The delays in seeking care patterns, the delays in reaching the facility. We have still difficult problems for the mothers in the rural areas to reach the facility. Sometimes they have to pay 2,000, 3,000 rupees to get the facility. And once they reach the facility, they have to face shortage of human resources, lack of medicines, and quality of care still not the best. So postnatal care also is a thing that we need to reinforce. जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। तो फ़ोन लाइन पे यूनिसेफ के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जॉर्ज कारावोटा हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने भी साफ तौर पे वही बात कही है कि गरीबी, कुपोषण, आर्थिक ये सब फैसिलिटीज़ ना मिलना जिसकी वजह से जो है डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम NGOs की बात करें, सरकारी संगठनों की बात करें, सिविल सोसाइटी की बात करें, उनका कितना योगदान हो सकता है इसे कम करने के लिए? उनका इसमें, जैसे वो कह रही थी, एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और उसकी कमी 67% जो बता रही थी उनमें नहीं, उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हो रहा है। आप जैसे केरला का एग्जांपल ले लीजिए, कम से कम लोगों को पढ़ना लिखना आता है और उन्हें कुछ बताया जा सकता है। लिटरेसी मदद करती है, और अगर चाहे पढ़ना लिखना ना भी आए, कम से कम ओरल एजुकेशन दिया जा सकता है। तो उसमें सिविल सोसाइटी का काफ़ी योगदान हो सकता है, अगर वो इस तरह का आउटरीच का काम करें, घर घर में जाके समझाए लोगों को, ना कि हम पूरी तरह से सरकार पे डिपेंड करें कि वो। सरकार तो साफ तौर पे दावा करती रहती है कि वो अपनी तरफ से कैंपेन चला रही है, जगह जगह गांव में नहीं, जा रही है, लोगों को आशा जागरूक बना रही है। आशा हैं जो सोशल वर्कर गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हैं हर एक गाँव में। आप उड़ीसा में भी किसी भी गाँव में जाके देखिए, मैं खुद गई, मैंने देखा किसी भी सबसे छोटे और दूर के गांव में जाएंगे ना, वहाँ एक आशा होगी। तो फिर आम लोग फिर इसका फायदा नहीं उठा पाते, कि आम जनता बिल्कुल कोई इसका फायदा नहीं उठा पाती। गवर्नमेंट उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर पाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसमें NGOs मदद कर सकती हैं आउटरीच में। और दूसरी बात यह है कि सरकार को थोड़ा पैसा और ज़्यादा खर्च करना होगा हेल्थ केयर में। जैसे में अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 4 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ही प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। अब मुझे डॉक्टर आपसे ही जानना चाहूँगी, कम एज में भी मैरिज होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ये कितना आप मानते हैं कि कम उम्र में अगर शादी हो जाए तो MMR रेट सबसे ज़्यादा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारण है MMR का। और आपको ताज्जुब होगा कि ज़्यादातर हमारे जो गरीब क्षेत्रों की लड़कियां हैं वो 18 साल पहुंचने से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। उसका कारण ये है कि माँ बाप जो है एक तरह से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देना चाहते हैं इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो। तो वो, और जब शादी होती है तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ अब एक बच्चा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो मामले हैं ज़्यादातर यूपी वगैरह, बिहार, झारखंड, राजस्थान एरिया में ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे कम उम्र में शादी हो जाती है। अगर 6 महीने में प्रेग्नेंट नहीं होती लड़की तो उनकी जांच शुरू हो जाती है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ठीक है या नहीं है। तो ये छोटी उम्र में बच्चा पैदा होना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप लोगों से चर्चा हम जारी रखेंगे, यहाँ पर रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम फोकस स्पेशल।